چیئرمین نیب سے گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا جائے گا. 5 سال سے پرانے کھاتے نہیں کھولے جا سکیں گے. گمنام شکایت پر کارروائی نہیں ہو سکے گی. اہلیہ، بچے، بھائی بہن بے نامی دار کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. نیب ترمیمی آرڈیننس کا مجوزہ مسودہ وزیر اعظم کو بھجوا دیا گیا. متفقہ نیب آرڈیننس کی شکوں سے متعلق کئی چیزیں غلط چلائی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر فروغ نسیم: ابھی تک مسودہ تیار نہیں ہوا، مزید کچھ دن لگ سکتے ہیں. اپوزیشن اور نیب سے مشاورت ہونا باقی ہے. حکومت شفاف احتساب پر یقین رکھتی ہے. شہزاد اکبر: سیاسی جماعتوں کا قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس نہ بلانے پر اتفاق. وفاقی وزیر فخر امام کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کی اہم بیٹھک. رولز میں بھی ورچوئل اجلاس کی اجازت نہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اراکین پہنچ سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی: پارلیمانی نگرانی کے لیے سیشن بلانا انتہائی ضروری. اراکین کی صحت کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس بلایا جائے. اسپیکر آفس کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو: مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کے لیے اچھی خبر. 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی ہونے کا امکان. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہونے سے غریب پر بوجھ کم ہوگا. اگلا بجٹ کورونا بجٹ ہوگا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ: کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی. مزید 26 افراد جاں بحق. اب تک 327 اموات. ملک بھر میں 14,885 شہری متاثر. پنجاب میں 5,827، سندھ 5,291، خیبر پختونخوا 2,160 اور بلوچستان میں 915 کیسز. 3,425 مریض صحت یاب. فیصل لیدھی کی دوسری کورونا رپورٹ بھی مثبت. سماجی کارکن نے 27 اپریل کو پیمز اسپتال سے ٹیسٹ کرایا تھا. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ اس وقت اسلام آباد میں قرنطینہ میں ہیں. سندھ میں کورونا سے مزید 8 ہلاکتیں. تعداد 100 ہو گئی. تاجروں کی آسانی کے لیے کچھ کاروبار کھول دیا. کورونا ٹیسٹ کے لیے صوبے میں مزید 2 لیبز قائم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ویڈیو بیان. پنجاب میں ٹائیگر فورس آپریشنل. عثمان بزدار کی سیالکوٹ میں فورس کے نوجوانوں سے ملاقات. وزیر اعلیٰ کا فیلڈ اسپتال اور احساس کفالت پروگرام سینٹر کا بھی دورہ. مالی امداد کی تقسیم کے حوالے سے بریفنگ. سندھ اور پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری. پابندیوں کی خلاف ورزیاں معمول. سڑکوں اور بازاروں میں رش. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جگہ جگہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی. کورونا پر قابو پانے کا چیلنج. مشکل کی گھڑی میں پاک فوج پوری قوم کے شانہ بشانہ. ملک بھر میں فوجی دستوں کا سول انتظامیہ سے بھرپور تعاون. متاثرہ علاقوں میں امدادی پیکیجز کی تقسیم. کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء شامل. بیرون ملک سے واپسی کا مشن. برطانیہ، کینیڈا، ناروے، ترکی سمیت کئی ممالک سے اب تک 18,000 سے زائد پاکستانیوں کی وطن آمد. 7,384 عمرہ زائرین بھی شامل. لاک ڈاؤن سے کورونا کو مظلوموں کا ہتھیار بنا دیا گیا. شہباز شریف: آٹا چینی چوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پشاور میٹرو کے کھڈے کھودنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ حمزہ شہباز کو 11 ماہ سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تک کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا. مریم اورنگزیب: کورونا سے پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر. رواں سال جاری کھاتوں کا خسارہ 26% کم رہنے کا امکان. برآمدات میں 7 اور درآمدات میں 8% کمی کا خدشہ. براہ راست سرمایہ کاری بھی 16% کم ہو سکتی ہے. IMF:
दुनिया भर में मुसलमानों के लिए अच्छी खबर, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द खोल दिया जाएगा। नमाजी दोबारा तवाफ कर सकेंगे और रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश करेंगे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की तस्दीक। अमरीका कोरोना के सामने बेबस। कोरोना से मजीद 2470 हलाकतें। अब तक 59,266 अफराद जान से गए। 10,35,000 से ज़ायद शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। मुअव्विन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त नहीं, अभी तक कोई मुसव्वदा तैयार नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा मुसव्वदा और खबर दुरुस्त नहीं, मुसव्वदे की तैयारी नैब की मुशावरत से की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से अपोजिशन और नैब से मुशावरत होना भी बाकी है। मुअव्विन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। क़वानीन में तरमीम को लेके पहले एक इनिशियल मसवदा तैयार किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन और नैब जो इदारा है मेन, उससे भी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद ही इसकी अमेंडमेंट्स के ऊपर कुछ तैयारी होगी। तो अभी तो मसवदा तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन ये कोई मसवदा जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हुकूमती टीम की जो इस वक्त काविशें हैं उसका हिस्सा नहीं है, तो ये मसवदा भी दुरुस्त नहीं है और ये खबर भी दुरुस्त नहीं है। ये हुकूमती जो इस वक्त एफर्ट है वो तो यही है कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पार्टी जो है वो एहतसाब के अमल पे यकीन रखती है और शफाफ इंसाफ के ऊपर, शफाफ एहतसाब के ऊपर यकीन रखती है। शफाफ एहतसाब का मकसद ये है कि इसके अंदर जितने कवानीन हैं उनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, अगर उसमें कोई जो चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एहतसाब के अमल में इस तरह की कोई चीज़ चेंज कर दी जाए जिससे ये तासुर जाए कि शायद हम अपने एहतसाब के जो मंशूर जो हमारे हिस्सा है उसे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी, उनकी प्रोटेक्शन, सिविल सर्वेंट्स जो भी वो गुड फेथ में काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन, उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इससे हटकर अगर कोई भी काम, जिस तरह से एक ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि कुछ पैसों की लिमिट लगा दी जाए, तो वो एक असूली तौर पे चीज़ गलत है। पहली बात ये, इसमें क्लैरिटी ज़रूरी है। करप्शन चाहे रुपए की हो या अरब रुपए की हो, करप्शन है। इस मामले के हवाले से आपने वजाहत सुनी। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ। वर्चुअल इजलास ना बुलाने पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। इस इजलास में ये कहना था फहमीदा मिर्जा का। कौमी असम्बली के देते वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं पहला इजलास मुकम्मल तौर पर बुलाया जाए। सरदार अयाज सादिक का ये कहना था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मौके पर यह कहा है। तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हम स्पीकर ऑफिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। स्पीकर अरकान कौमी असम्बली और अमले की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये तजवीज़ दी गई थी कि इजलास वर्चुअल बुलाया जाए, लेकिन इस पर अब तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है कि वर्चुअल इजलास नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। आलमी मंडी की सूरत हाल तो मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रिलीफ मिलने का इम्कान है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी आज इरसाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 1 मई से होगा। आपको आगाह करें कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अलीम मलिक से जान लेंगे कि ये कमी किस हद तक हो सकती है। जी अलीम। जी, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो क्रूड ऑयल उसकी कीमत में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतनी खपत नहीं रही है और उस हिसाब से हमने जो है पेट्रोल इंपोर्ट नहीं किया है, तो इस वजह से जो है इतनी रिलीफ नहीं आ सकेगा। तमाम हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो 1 मई है वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर रिलीफ मिलने का इम्कान है और 1 मई से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 15 रुपए फी लीटर तक जो है वो कमी हो सकती है। इस सिलसिले में जो ओगरा की जानिब से समरी तैयार की जा रही है और ये समरी जो है वो आज पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की जाएगी। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो पेट्रोल
उसकी कीमत में तकरीबन 15 रुपए फी लीटर कमी जो है वो हो सकती है, जबकि जो लाइट डीजल है और जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी होने का इम्कान है। ओगरा की जानिब से भी समरी जो है वो उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और उसमें जो जितनी भी कैलकुलेशन है आलमी मार्केट के हिसाब से, फिर हमें जो फ्रेट पड़ता है उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन करने के बाद समरी जो है वो आज ठीक है। जामे तफसीलात से आगाह करने के लिए अली मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अहम खबर दें, कराची से जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अहलिया समेत अहल खाना के 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अब्दुल रशीद के 3 बच्चे, वालिदा, बहन और बहनोई भी शामिल हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो कोरोना वायरस के वार बढ़ते जा रहे हैं सिंध में। ऐसे में जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली हैं अब्दुल रशीद, जिनका कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है टेस्ट, और अहलिया समेत अहल खाना के 8 अफराद का कोरोना टेस्ट भी है। जिक्र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिनका कहना है कि सिंध में कोरोना से मजीद 8 हलाकतें हुई, जिसके बाद ये तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। दुकानें ऑनलाइन कारोबार के लिए खोल दी। उन्होंने कहा कि सूबे में मजीद 2 लैब कायम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मजीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। इस तरीके से टोटल तादाद जो लोग वफ़ात पा चुके हैं 26 अप्रैल या पहली डेथ हमारे पास सुबह सिंध में 19 मार्च को हुई थी, उससे आज तक उनकी टोटल तादाद 100 हो गई। 505 लोग जो हैं कराची एयरपोर्ट पे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं, उन 505 के सैंपल लिए गए, उनमें से 69 पॉजिटिव हैं। हम मज़ीद 2 लैब्स अपनी तैयार कर लेंगे, एक लाड़काना शहर में और जो कराची में एक लैब है कराची यूनिवर्सिटी में, उसकी तादाद भी टेस्टिंग की ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन डाल के और मज़ीद कर सकेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग कुछ हमने कारोबार इंडस्ट्रीज़ खोल दिए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी है, लोग बाहर निकल रहे हैं। सबसे ये दरख्वास्त है कि सारी एहतियाती तदाबीर आप करते हैं का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। फैसल ईधी इस वक्त इस्लामाबाद में आइसोलेशन में मौजूद हैं। ईधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईधी ने 8 रोज़ पहले तबीयत नासाज होने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनकी पहली रिपोर्ट मुस्बत आई थी। ताहम 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में कराए गए दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। फैसल ईधी इस्लामाबाद ईधी होम के आइसोलेशन में मौजूद हैं। फैसल ईधी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करने इस्लामाबाद गए थे। अहम खबर देंगे आपको। शिबली फराज मुआविन खुसूसी आसिम सलीम की वजारत इत्तलात आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी ने जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। सेक्रेटरी इत्तलात और वजारत के ज़ैली इदारों के सरबराहों की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अहम जिम्मेदारी सौंपना मेरे लिए एजाज़ है, ऐसा कहना था शिबली फराज का। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात सेंटर शिबली फराज और मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात और नशियात जनरल बाजवा। उन्होंने आज वजारत इंफॉर्मेशन का वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग ली और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संभाली। सेक्रेटरी इत्तलात ने तमाम जो ज़ैली इदारे हैं वजारत के और जो उसके मुतलका अफसरान हैं उनके साथ उनका तारुफ भी कराया और उन इदारों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर सेंटर शिबली फराज है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है और ये उनके लिए एजाज़ की बात है। इत्तलात और नशियात एक ऐसी वजारत है जिसे हमेशा से ही रवायती अंदाज से चलाया जाता रहा है और अब हम चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए हैं तो वजारत इत्तलात के किरदार को मजीद फाल और मुतहरिक बनाएंगे। सेंटर शिबली फराज ने कहा कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा है, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बतौर मुआविन खुसूसी काम करना बाइस एजाज है और अब हमने वसदी के तकाजों से हम आहंग करना है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी मुल्क के नौजवानों और सहाफियों की तरबियत के लिए जो असर हाजिर है उसके तकाजों से लैस एक प्रोग्राम हम तरतीब देंगे और इस एकेडमी को इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वजारत के तमाम इदारों के माबैन जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा और तमाम इदारों की जो कारकर्दगी है उसको भी फाल बनाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये एक ब्रीफिंग थी और आज पहला बिल्कुल ठीक है, पहला दिन था आज उन्होंने ब्रीफिंग दी गई है और अच्छे अंदाज में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का अज़्म का इज़हार